हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरांकर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? हरियाणा जुडिशरी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड आई होप एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। आप सभी लोग अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे और प्रीलिम्स की तैयारी में सभी लोग बहुत अपना फुल एनर्जी के साथ लगे हैं और लगना भी चाहिए। इतनी सारी वैकेंसीज हैं और सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई में एक छोटा सा मेरा योगदान है। आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी। टॉपिक है प्ली बार्गेनिंग। लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम टाइम इममेमोरियल, it is a primary function of the state to maintain law and order and to ensure that justice shall prevail. This function remains unchanged when the state was evolving from police state to welfare state. Citizens pay taxes everywhere to the state and the official so that there should be a smooth functioning of all the three organs of the government. Prolonged pre-trials, backlog in cases result in undue delay in justice, which definitely people start losing their faith on judiciary, which is considered to be the cornerstone in a legal system. So with this aspiration that people should not lose their faith in judiciary, and they should not keep this one thing in their mind that justice is delayed, right? And when it is delayed, people start thinking that it is denied, right? So in 1991, the Law Commission of India recommended to introduce plea bargaining in the Criminal Procedure Code. In other countries, I'm talking about other countries, they have already incorporated in their criminal procedure system the provision of plea bargaining. But in India, when new CRPC came into force, the concept of plea bargaining was not there. In 1991, the Law Commission of India recommended to introduce plea bargaining in our criminal system. The recommendation was that it will reduce the burden of the court by reducing congestion in the court. It will also reduce the cost and the timing of the proceeding. It will also ensure the effective compensation to the victim. But all these recommendations were not implemented. Again, in the year 1996, the Law Commission of India came with a new recommendation in its new report, the same recommendation to introduce the concept of plea bargaining, but it was also not implemented because Indian judiciary was very much reluctant that they don't want the plea bargaining should be introduced in our criminal procedure code. And on various occasions, they have rejected even the recommendation of the Law Commission of India. Supreme Court, in the case of Muralidhar versus State of Maharashtra, held that if this provision would be incorporated, this would be used by the powerful accused and hence it should not be allowed. Finally, in year 2003, the Malimath Committee report recommended to introduce the concept of plea bargaining in the CRPC, and now in year 2005, through Criminal Amendment Act 2005, this provision was introduced. The concept of plea bargaining was introduced in Criminal Procedure Code. It came into force wide effect from 5th July 2006. That is 5th July 2006 is the date of enforcement. 5th July 2006 was the date of enforcement of the plea bargaining. A new chapter was added. Chapter 21. 21A was added in the CRPC. And when this chapter was added, the 12 sections were also added. The section 265A to section 265L. Right. 265A to section 265L was added in the CRPC. Total 12 sections were added. So, the concept of plea bargaining was introduced in India as well. Before we go and examine what is the provision of plea bargaining in CRPC in India, we need to understand the concept of plea bargaining. What exactly is a plea bargaining? Basically, plea bargaining is in negotiation. It's a pre-trial negotiation between the accused and the prosecutor.
अब जो नेगोशिएशन है वो किस चीज पे है, जो बार्गेनिंग है वो चार्ज पे भी हो सकती है, वो सेंटेंस पे भी हो सकता है, right? That negotiation can be on the basis of a charge, on charge, जो bargaining can be on charge और bargaining can be on sentence. So आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और इंग्लैंड में सेंटेंस पे बार्गेनिंग होती है, यूएसए में जो है वो चार्ज पे बार्गेनिंग होती है। वो कैसे होता है? इन इंडिया द प्ली कंसेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज सेंटेंस बार्गेनिंग, that in lieu of the larger sentence for any offense, accused will be convicted, right, and his sentence will be minimized if in the case the application for the plea bargaining is successful. But in USA what it happens, there is a charge bargaining, that accused will be charged for the accused will be charged for the offense, lesser charge for the offense as as he was originally charged with the a bigger charge was framed against the accused, means accused के ऊपर जो charge है उस पे bargaining होगा और उसको lesser offense के charge उसके ऊपर लगेगा, ना कि किसी बड़े offense का charge लगेगा। लेकिन भारत में जो provision है that is on the sentence bargaining, accused का conviction होगा और conviction पे उसको lesser sentence मिलेगा, मतलब उसका sentence minimize हो जाएगा। आप इस बात को इस चीज से कंफ्यूज मत करिएगा कि ये कंपाउंडिंग की तरह से होता है, यहाँ पे कंपाउंडिंग की तरह नहीं होता है। कंपाउंडिंग में क्या होता है? एक्विटल हो जाता है। अगर कि कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल है और कंपाउंडिंग होता है तो उसका रिजल्ट एक्विटल होता है, लेकिन यहाँ पे अगर प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन सक्सेसफुल है तो इसका रिजल्ट पता है क्या है? इसका रिजल्ट कन्विक्शन ही है, लेकिन लेसर सेंटेंस का कन्विक्शन है। फाइनली सीआरपीसी में हमारे पास प्ली बार्गेनिंग एज अ प्रोविजन इनकॉर्पोरेट हो गया, थैंक्स टू मैनेजमेंट कमेटी रिकमेंडेशन। अब बारी आती है कि क्या प्रोसेस होगा, कौन एप्लीकेशन फाइल करेगा, किस कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल होगा, किन किन ऑफेंसेस में प्ली बार्गेनिंग अलाउड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब। देखिए, प्ली बार्गेनिंग उन्हीं ऑफेंसेस में अलाउड है जो कि सेंटेंस, डेथ सेंटेंस जिनका पनिशमेंट नहीं है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 आईपीसी जो सेंटेंस जहां पे दिया हुआ है, ऐसे ऑफेंसेस का जिनका डेथ सेंटेंस नहीं है, जिनका लाइफ इंप्रिजमेंट नहीं है, जो 7 साल से ज्यादा के सजा वाले ऑफेंसेस हैं, उन पे प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन नहीं लगता। वो ऑफेंसेस जो महिलाओं के खिलाफ है, द ऑफेंसेस विच आर अगेंस्ट द वुमेन, द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years, and also the offenses which affect the socio-economic condition of the country. Are you getting the point? Socio-economic condition of the country. Now, so it is very much clear that these are the list of the offenses. एक एग्जाम में सवाल आता है कि who notified that there are list of the offenses which affect the socio-economic condition of the country. It is the central government who notified that these are the offenses which affect the socio-economic condition of the country. नाउ कमिंग बैक टू दी प्रोसीडिंग, कैसे स्टार्ट होता है? मान लीजिए प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन कब लगता है, कैसे स्टार्ट होता है? क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे पास 3 तरह से कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है। मैंने आपको बताया ये प्री ट्रायल नेगोशिएशन है, तो कहीं ना कहीं ये इंक्वायरी के स्टेज की बाद की प्रोसीडिंग होती है, और इंक्वायरी जैसे ही मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, स्टेज ऑफ इंक्वायरी स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब अगर मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लिया है तो चार्जशीट फाइल होने के बाद और मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस के बाद प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन चलेगा। अगर वो कंप्लेंट प्रोसीडिंग है, जैसा कि हम सब जानते हैं कंप्लेंट प्रोसीडिंग में द अक्यूज इज नॉट इन द पिक्चर, तो जैसे ही सम्मन आपको इश्यू हो जाएगा अंडर सेक्शन 204 में, आपको वो प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन लग सकता है। इंफॉर्मेशन के केस का जिक्र नहीं है 265A में, लेकिन ये हम इंटरप्रिटेशन के तहत मान लेते हैं कि विक्टिम और अक्यूज तो इंफॉर्मेशन केसेस में भी होते हैं, तो वहां भी प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन लग जाता है। तो अभी हमने देखा कि प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन कब कब लग सकता है। अब बारी आती है कौन फाइल करता है एप्लीकेशन। इट इज अक्यूज हु फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर द प्ली बार्गेनिंग इन द कोर्ट इन विच द केस इज पेंडिंग। Are you getting my point? That in the court in which the case is pending, the accused will file an application, and the application will be supported by the affidavit which is sworn by the accused. That I understand the nature and the extent of the punishment, and it is voluntarily. There is no force. I understand the nature and the extent of the punishment for the respective offense.
अब बारी आती है जैसे ही एप्लीकेशन फाइल हुआ, अब एप्लीकेशन फाइल होते थोड़ी प्ली बार्गेनिंग की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब कोर्ट विल फिक्स अ डेट, कोर्ट विल एग्जामिन द अक्यूज इन कैमरा, एंड व्हेन आई सेड कोर्ट विल एग्जामिन द अक्यूज इन कैमरा, मतलब जनरल पब्लिक इज नॉट अलाउड, राइट? यू रिमेंबर सेक्शन 327, एग्जामिनेशन ऑफ लाइक अक्यूज विल बी एग्जामिन इन कैमरा। अब डेट फिक्स हो गया, अब डेट फिक्स होने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी, जैसे अगर पुलिस रिपोर्ट का केस होगा तो कोर्ट नोटिस भेजेगा, किसको? अक्यूज को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को, आईओ को और विक्टिम को, ये सब लोगों को भेजेगा, डेट फिक्स करेगा कि भाई आप अगर अक्यूज को लगता है कि वो अपना भी लॉयर इंगेज करना चाहता है तो अक्यूज अपना भी लॉयर इंगेज कर सकता है। ऐसा लिखा नहीं है कि विक्टिम को कोई ऐसा है कि विक्टिम लॉयर इंगेज नहीं कर सकता, इट क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन विक्टिम की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑलरेडी खड़ा है, तो विक्टिम चाहे तो अपना वकील कर सकता है, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बिकॉज विक्टिम की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज देयर। अब और अदर केसेस में अक्यूज एंड विक्टिम को नोटिस जाएगा कि भैया अब नाउ ऑल ऑफ यू सेट टुगेदर एंड म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस को खत्म करो। विक्टिम सेटिस्फाई हो जाए कि उसको कंपेंसेशन ठीक मिलेगा, ये आपस में डिसाइड कर लो तुम लोग कि कैसे चलेगा, बट कोर्ट इसमें पूरा अपना सुपरविजन रखता है कि ये जितनी भी प्रोसीडिंग हो रही है म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस का, ये वॉलेंटरली होना चाहिए। अब वॉलेंटरली कैसे होगा, क्या हर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में कोर्ट अपना मैकेनिज्म ड्रॉ करती है कि कैसे ये केस वॉलेंटरली है कि नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि जितना भी म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन हो रहा है या जो भी इनकी आपस में नेगोशिएशन हो रहा है वो वॉलेंटरली नहीं है, तो एप्लीकेशन वापस से उसी स्टेज पे आ जाता है जहां जिस स्टेज से फाइल हुआ था। अगर वो वॉलेंटरली है तो कोर्ट आगे मूव करता है। कोर्ट वॉलेंटरली मैकेनिज्म को चेक करने के लिए अपना कोई सीनियर लॉयर अपॉइंट कर सकती है जो कि सारे प्रोसीडिंग को देखे, सारा सुपरविजन करे, दैट डिपेंडिंग अपॉन द कोर्ट। अब अगर ये किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं सब नेगोशिएशन करके, yes they have reached to the conclusion, then court will that it will be signed by the presiding officer and it will also be signed by the other people। अब जो भी कंक्लूजन पे ये पहुंचे हैं, ये कंक्लूजन जो है, ये जो भी जजमेंट आया है प्ली बार्गेनिंग के बाद, उस जो भी इनका जजमेंट है इस पे अपील नहीं होता है, ठीक है? अब आपके एग्जाम में सवाल आता है कि जो जजमेंट प्ली बार्गेनिंग से जो उनका कंक्लूजन निकलता है वो क्या अपीलेबल है? देखिए उसका अपील नहीं होता, लेकिन उसके लिए हमेशा यू कैन फाइल एन SLP अंडर आर्टिकल 136, यू कैन फाइल एन SLP अंडर आर्टिकल 136 आई एम सॉरी, अंडर आर्टिकल 136, and you can also file a writ petition under article 226, 227, right? अब now what is important is that अब ये जजमेंट आपका अपील नहीं होता, लेकिन ये दोनों सारे रेमेडीज आप अवेल कर सकते हैं। अब एक और नया सवाल आता है कि एक आपको प्रोविजन पता होगा कि क्या अगर अक्यूज प्ली बार्गेनिंग में कन्विक्शन हो जाता है, प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेशन सक्सेसफुल है, कन्विक्शन हो गया, तो मान लीजिए कोई अक्यूज को 1 साल की सजा मिलती है, तो क्या जो पीरियड वो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के दौरान डिटेंशन में था, क्या उनका सेट ऑफ हो सकता है? क्या सेक्शन 428 के प्रोविजन जो सेट ऑफ की बात करता है, क्या वो प्ली बार्गेनिंग में भी लगती है? यस, सेट ऑफ हो सकता है। मान लीजिए कोई अक्यूज 1 साल का उसको सेंटेंस होता है, प्ली बार्गेनिंग के बाद कन्विक्शन होता है, और वो 3 मंथ्स जो है ऑलरेडी डिटेंशन में रह चुका है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, तो वो माइनस हो जाएगा, राइट? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने अभी किया है, ये जितने भी टॉपिक्स हमने किया है, जितने भी पॉइंट्स हमने किया है, ये प्ली बार्गेनिंग कौन से ईयर में आया था? 2006 में। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है? 5 जुलाई 2006। अच्छा, एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई आपको। कई बार क्योंकि 2005 के अमेंडमेंट से कई सारे प्रोविजंस आए होंगे, कई सारे एक्ट में अमेंडमेंट हुआ होगा, तो जो प्ली बार्गेनिंग वाला है उसका एक्ट नंबर क्या है? इट इज एक्ट नंबर 2 ऑफ 2006, एक्ट 2 ऑफ 2006। अब ये किन किन ऑफेंसेस में अलाउड नहीं है? वो ऑफेंसेस जिसमें डेथ सेंटेंस, जिसमें आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट या जो एक्सीडिंग 7 ईयर्स है उसमें नहीं लगता, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन में नहीं लगता, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री में नहीं लगता। अच्छा, एक और सवाल, क्या प्राइवेट कंप्लेंट में प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशंस लगते हैं? यस, लगते हैं। तब लगेगा जब मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लेके आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इन जजमेंट्स जो प्ली बार्गेनिंग में जो जजमेंट आता है उसका अपील होता है? तो अपील नहीं होता है, ठीक है? क्या ये कन्फेशन की तरह यूज किया जाता है? नो, इट इज नॉट अ कन्फेशन।
राइट। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर से कुछ हेल्प होगा आपके एग्जाम में, और थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विथ वी रैंकर्स।